عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دین ہی اصل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ کلیئر طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین ہے اللہ کے نزدیک تو بس اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور صاف لفظوں میں بتایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ 100% نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ دین سے دور ہو کر دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والا ہوگا، اس لیے کہ یہ جو دین ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کا راستہ بتاتا ہے۔ دونوں میں کس طرح سے دونوں کے لیے تیار رہنا ہے، دونوں کی تیاری کرنا ہے، دونوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، یہ دین بتاتا ہے۔ اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے۔ اگر کوئی دین میں سختی کرتا ہے، یعنی اپنے اوپر زبردستی دین کو سخت بناتا ہے، تو وہ خود ہی مغلوب ہو جائے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا اور وہ دین کو سخت نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ دین کو اللہ رب العزت نے آسان بنایا۔ آسانی کس طرح کی ہے؟ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دین صرف ایک شعبے پر اپنے ماننے والوں کو نہیں ابھارتا، بلکہ اس دین کے کئی شعبے ہیں۔ جہاد الگ ایک شعبہ ہے، نماز ایک الگ شعبہ ہے، صدقات ایک الگ شعبہ ہے، بیوہ و مسکینوں کا خیال کرنا الگ شعبہ ہے، حیا کرنا الگ شعبہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر یعنی خانقاہوں کو آباد کرنا ایک الگ شعبہ ہے، مدارس کو آباد کرنا ایک الگ شعبہ ہے، مساجد کے لیے کوشش کرنا، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ایک الگ شعبہ ہے، راستے سے پتھر کو ہٹا دینا ایک الگ شعبہ ہے، سماج میں سماج سدھار کرنا ایک الگ شعبہ ہے، سوشل ریفارمنگ کرنا الگ شعبہ ہے، سماج میں برائی کم ہو نیکی زیادہ ہو ایک الگ شعبہ ہے، انسانیت کی فلاح ہو یہ الگ شعبہ ہے، درندوں پرندوں چرندوں جانوروں تک کا خیال رکھنا ایک الگ شعبہ ہے، نوکروں ملازموں ماتحتوں کا خیال رکھنا ایک الگ شعبہ ہے۔ اور کل ملا کر آقا کریم نے فرمایا کہ اسلام کے 60 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، 60 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، اور فرمایا کہ حیا کرنا، چاہے وہ اللہ سے حیا ہو یا لوگوں سے حیا، یہ ایمان کا اسپیشل شعبہ ہے۔ حیا کے نتیجے میں انسان بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری خرابیوں سے، بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے۔ سماج میں ہونے والی بہت ساری خرابیاں جو پہلے نہ تھی اور اب ہیں، وہ یہ تھا کہ پہلے حیا کرتا تھا انسان، چھوٹا بڑے کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے بڑے سے شرمندگی اس کو ہو، چھوٹا بڑے کا خیال کرتا تھا، بڑا چھوٹے کا خیال کرتا تھا، اس کے سامنے وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا وہ جو چھوٹے کے لیے زیب نہیں دیتا، بڑا چھوٹے کے سامنے وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا جو بڑے کے لیے زیب نہیں دیتا۔ یہ سب چیزیں چلتی تھیں، آج وہ چیزیں کم ہو گئیں، ختم ہو گئیں، اس میں حیا کا کافی رول ہے۔ آج حیا نہ رہا، بڑا موجود ہے اس کے سامنے سگریٹ پیا جا رہا ہے، بڑا موجود ہے اس کے سامنے کھینی ٹھوکا جا رہا ہے، چھوٹا سامنے اس کے سامنے سگریٹ پیا جا رہا ہے، چھوٹا سامنے اس کے سامنے کھینی ٹھوکی جا رہی ہے۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو حیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو کہا آقا کریم نے کہ ایمان کے اور اسلام کے 60 سے بھی زیادہ شعبے، اور فرمایا آقا کریم نبی رحمت نے
कि किसी भी शोबे को कमतर नहीं समझना। हर शोबे की अलग फजीलत, हर शोबे का अलग अहमियत है, हर ईमान की शाख का अलग रुतबा है और सब अपने आप में जरूरी है। कोई नमाज पढ़ रहा है लेकिन अगर सोशल काम वो नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो वो सोशल काम करने वालों को हकीर ना समझे। कोई सोशल काम कर रहा है और नमाज किसी वजह से नहीं पढ़ रहा है, हालांकि उस पर जरूरी है, तो उसको भी चाहिए कि जो नमाज पढ़ने वाले को हकीर न समझे। कोई रास्ते से तकलीफ दह चीज को, पत्थर वगैरह को हटा रहा है, इसको कम न समझे। कोई किसी को कारीगरी सिखा रहा है, कोई हुनर सिखा रहा है, ये भी दीन का हिस्सा है, ये भी 60 से ज्यादा इस्लाम के शोबों में से एक शोबा। कोई किसी की मदद कर रहा है, सवारी पर कुछ उसको सवार कर देना है, लोड कर देना है, कोई चीज रख देना है, मसलन किसी का जाते हुए बाइक से सामान को कुछ गिर गया, उठा कर दे देना, ये भी इस्लाम का हिस्सा है, ये भी ईमान का शोबा। आकाए करीम ने हजरत अबू ज़र जुंदुब बिन जुनादा रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया कि अबू ज़र ला तहकीरन्न मिनल मारूफ शैआ, कि भली बात कुछ भी हो उसको हकीर न समझो। वलो अन तल्का बिअखाका बिवजहिन तलीक, अगरचे वो भली बात ये हो कि तुम अपने भाई से मिल रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर खुशी हो, खुशी की लहर के साथ, खंदा पेशानी के साथ मुस्कुराते हुए अपने भाई से या मोमिन भाई से मिल रहे हो, तो इसको भी हकीर ना समझो। ये भी बहुत ही बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा सदका है। इसी तरह आकाए करीम ने खवातीन को, जिनकी जबान पर हर वक्त हर पे शिकायत होती है, उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए खवातीनाने इस्लाम, आप हकीर ना समझें। हदिये की शक्ल में आप अगर कोई देता है कुछ, वलो फिरसना बिशाती, अगर बकरी का खुर भी कोई हदिये के तौर पर आपके घर में भेजता, आपका पड़ोसी, आपका कोई चाहने वाला या आपसे ताल्लुक रखने वाला, तो यूं ना कहना कि यही था बचा हुआ, शोरबा बस बचा हुआ था दे दिया, खिचड़ा भेजा तो गोश्त था ही नहीं, भेज दिया चावल। ये हकीर ना समझो। अगरचे बकरी का खुर, यानी आका ने फरमाया कि मामूली चीज भी अगर हदिये के तौर पर और किसी अहले कराबत की तरफ से, रिश्तेदार की तरफ से खिचड़े की शक्ल में बगैर गोश्त वाले अगर कुछ आता है, तो उसको मामूली ना समझो। ये भी बहुत ही बड़ी नेकी है। ये बात दोनों तरफ से फरमाया। अगर आपके पास कोई भेज रहा है तो आप उसको हकीर ना समझे, या आप किसी के पास कुछ इस तरह की चीजें भेज रहे हैं मामूली शक्ल में, आपको लग रहा है कि क्या एक ही पीस मिठाई है, इसको आधा कैसे भेजें? नहीं, इस्लाम ने कहा है कि ये भी बड़ी नेकी है, ये भी बहुत बड़ा अमल है, इसलिए कि हो सकता है कि उसको इतनी की भी जरूरत हो। कहते हैं ना, डूबते तो तिनके का सहारा। तो आका करीम ने बताया कि नहीं, ये भी जो है बहुत ऊंचा अमल है, बहुत बड़ी नेकी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि एक आदमी को मैंने जन्नत में टहलता हुआ देखा, जन्नत की सैर करता हुआ देखा। सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, बहुत ऊंचा अमल किया होगा, बहुत बड़ा अमल किया होगा, बहुत ही बड़ी रकम दिया होगा, बहुत ही बड़ी ज़कात दी होगी, बहुत ही ऊंचा अमल हज और उम्रे की शक्ल में किया होगा। आका करीम ने फरमाया कि नहीं, एक आदमी को जन्नत में टहलते हुए देखा, इस वजह से कि एक दरख्त जो कांटेदार था और सड़क के बीच में था, आने जाने वाले को उससे तकलीफ होती थी। उस शख्स ने उस दरख्त को काट गिराया, काट के हटाकर किनारे कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कांटेदार दरख्त को हटाने की वजह से उसको जन्नत का फैसला कर दिया।
इसी तरह से आका करीम ने फरमाया कि अगर आप बंदा जब सुबह करता है, मोमिन बंदा जब सुबह करता है और सुबह होती है तो उसके जिस्म के जो 360 जोड़ हैं, हर जोड़ पर सदका हो जाता है, यानी सदका देना वाजिब होता है जोड़ की बुनियाद पर। ये जिस्म में जोड़ इतनी अहमियत हमारे लिए रखती है कि अगर जिस्म में जोड़ ना हो तो हम उठने बैठने लेटने से आजिज़ व काफिर हो जाएंगे। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी हरकत और बहुत सारे जो हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते भागते हैं, काम काज करते हैं, अगर जिस्म में ये जोड़ ना हो तो हम बिल्कुल रोबोट की तरह हो जाए। तो फरमाया कि अगर कोई बंदा मोमिन सुबह करता है तो उसके उस जोड़ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सदका वाजिब हो जाता है। तो सहाबा किराम में से बात इंतहाई गरीब थे। आका से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर हम सदका ना दे पाए तो क्या करें माल की शक्ल में? तो आका ने फरमाया कि घबराओ नहीं, अगर तुम भली बात किसी से कह रहे हो तो सदका है, अगर तुम रास्ते से किसी पत्थर को हटा दे रहे हो तो सदका है, अगर किसी को तुम सीधा रास्ता दिखा दे रहे हो तो सदका है। यहां तक कि आका करीम ने फरमाया कि अगर कोई भली बात करने से आजिज काफिर हो, किसी को सीधा रास्ता दिखाने से आजिज काफिर हो, कोई अच्छी रहनुमाई करने से भी आजिज व काफिर हो, तो अगर कोई इतना कर सकता हो कि अपनी बुराई से लोगों को तकलीफ न दे, यानी ऐसा कोई काम न करे जिससे दूसरों को तकलीफ हो, तो आका ने कहा कि यह भी सदका है। और यहां तक फरमा दिया कि अगर कोई अपने जो है खातून से अपनी ख्वाहिश पूरी करे वो भी सदका है। साहबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ऐसा कैसे होगा कि एक जिनसी ख्वाहिश है, फितरी आदत को इंसान जो है कर रहा है, उस पर भी सदका है? आका ने फरमाया कि अगर उसको वो गलत जगह पर करता, अगर वो हराम तरीके से करता, अगर गलत तरीके से उस काम को अंजाम देता तो वो गुनाह होता? साहबा ने कहा कि बिल्कुल। तो कहा कि अगर उसको वो अच्छे तरीके से, पाक तरीके से, हलाल तरीके से, जो तरीका अल्लाह ने फरमाया है उस तरीके से अंजाम दे रहा है, तो गोया कि वो गुनाह से बच रहा है और गुनाह से बचना भी सकता है। तो इस्लाम में बेइंतहा शोबे हैं, 60 से भी ज्यादा शोबे हैं और हर शोबे की अहमियत है, हर नेक काम करना सकता है। और खुलासा ये कि अच्छाई करना और बुराई से बचना दोनों नेकी है। कोई अच्छाई नहीं कर रहा लेकिन बुराई से बच रहा है, किसी को का भला नहीं कर रहा है लेकिन किसी का बुरा नहीं कर रहा है, तो ये भी काबिल कबूल अमल है, ये भी नेकी है, ये भी सदका है। इस्लाम में ये भी मतलूब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ज्यादा से ज्यादा नेकी करने और ज्यादा से ज्यादा अपने शर से किसी दूसरे को महफूज रखने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।